اس کے پاس ہیں، جو اس نے لکھا تھا وہ بھی اس کے پاس ہے، جو اجازت ملی ہے اس کو وہ بھی اس کے پاس ہے۔ میرا سوال اصل یہ ہے عدنان بھائی نہیں وہ الاؤ کہ نہیں ہے، ایریا سے شادی نہیں الاؤ ہوگی ویسے ہم نہیں الاؤڈ تو نہیں ہے، لیکن جب اس نے لکھا ہے کہ وہ خدا کو یہ لکھا سب خدا کو نہیں مانتی، ہاں اس نے صاف لکھا تھا۔ بس پیچھے جب خدا کو ہی نہیں مانتی تو دہ رہی ہے، تو اس پہ حضور اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دی ہوگی نا، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں دی ہوگی، اس نے کچھ اور نہیں دی ساکی صاحب اجازت اجازت نہیں دی۔ نہیں ساکی صاحب کوئی ایسے پروفٹ تو نہیں ہے نا کہ جو ان کی بات ہر بات کو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ نہیں لبنہ باجی کہہ رہی ہیں کال کا نہیں، لبنہ باجی کو جواب دیں۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا عدنان بھائی جو مجھے لگتا ہے، جی آواز آ رہی ہے میری عدنان بھائی آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ مجھے جو لگتا ہے نا عدنان بھائی، مجھے لگتا ہے کہ حضور تک خط پہنچا ہی نہیں ہونا، نیچے سے کسی نے نا جواب واپس بھیج دیا۔ نہیں نہیں بھائی، میں اس نے یا تو خط میں نہیں لکھا نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح سے ہوتا ہے، حضور تک وہ پوری بات پہنچتی ہے تبھی اس کی اجازت آتی ہے۔ اس نے یہ بات نہیں لکھی ہوگی جو آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں، آپ اتنا گہرا تو نہیں آپ کو علم ہو سکتا کہ وہ پرائیویٹ اپنے خط کیا لکھ رہا ہے حضور کو، اور حضور کی طرف سے کیا جواب آ رہے ہیں۔ عدنان بھائی میں نا، اگر آپ مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا، چلے احمدی تو پتہ نہیں آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ نہیں، کافی دفعہ آپ مرتد بھی اور یہ بھی کہتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ خط میں نے اور اس نے ایک ساتھ بیٹھ کے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا لکھا تھا آپ نے؟ یہی جو میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں ان نہیں لڑکی نہیں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے لیکن اجازت نہیں ملی ہوگی اس کا تو مجھے یقین ہے۔ اور اور وہ خط لکھا تو آپ نے اکٹھے بیٹھ کے تھا، پڑھا بھی آپ نے اکٹھے بیٹھ کے تھا ساکی صاحب؟ کون سا؟ جو واپس جواب آیا ہاں اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ کوشش کریں تو شادی آپ کر لیں، باقی کوشش جاری رکھیں، اس کو لے کے آئیں جماعت میں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام، لبنہ باجی السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ ساکی بھائی جو کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسلام میں اس نکاح کی اجازت ہو سکتی ہے۔ بالکل بھی نہیں لبنہ باجی۔ اور یہ بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہاں وہ نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہاں ہو، اگر وہاں جہاں پہ نکاح ہو ولی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں بالکل، اسلام میں تو بھائی اس طرح کیسے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے بھی ایک شوق والی بات ہے کہ حضور کی طرف سے اجازت ملی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل ایسے ہو۔ پتہ نہیں یہ کب کی بات بھائی کہہ رہے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ساکی بھائی؟ یہ نکاح ہوا تھا 2022 میں۔ اوئے یہ تو ابھی نیو ہے یہ۔ سال 1.5 سال بھی نہیں ہوا سمجھ۔ 2022 کے دسمبر میں۔ بس 7 سال کے۔ اوہو، یہ تو بڑا نہیں واقعی شاکنگ ہے میرے لیے، تو میں بہت بہت شاکنگ ہے۔ میرے لیے خود بہت یہ جو شوکنگ ہے۔ بہترین الفاظ ہیں وہ یہ ہوں گے، یہ تو بڑی نازک صورتحال ہے۔ ساکی بھائی میں نے آپ کو میسج کیا، مجھے نمبر ضرور بھیجنا ہے، میں ضرور تصدیق کروں گا۔ اب سیکر بھائی سوری میں نے بہت انٹرپٹ کیا۔ شاکنگ بات ہے اس پہ، تو مطلب اسلام کا کیا مطلب، میں اب کیا کہوں اس پہ۔ جی بالکل۔ اور سیکر بھائی سوری، میں آپ ماڈریٹ کر رہے ہیں، کسی کو اجازت ہے یا نہیں؟ میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے کریں آپ جی، سے۔ آپ کریں جی آپ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آن دا ادر ہینڈ لڑکی کو اجازت نہیں ملی، کیونکہ آپ کر رہے ہیں تو پھر سارے بولیں گے منڈی نہ بن جائے، وہ اس لیے آپ یہ نہیں، وہ تو پوائنٹ میرے ذہن میں ابھی تو اس پہ آنا ہے کہ پھر لڑکی کو کیوں نہیں ملی، وہ تو آنا ہے۔ لیکن اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، یہ بڑی ہی مطلب میں واقعی شاکنگ سچویشن ہے، کیونکہ مجھے خط ابھی کلیئر نہیں تھا کہ خط لکھا کیا گیا ہے۔ جب بتا دیا گیا ہے حضور کو کہ لڑکی نہیں مانتی خدا کو، پیغمبروں کو، احمدیت کو، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، دے رہی ہے، ظاہری بات ہے وہ ہے ہوگی جرمنی کی یا ادھر کی یورپ میں ہی ہوگی، تو پھر حضور نے اجازت دی کیسے اور نکاح کیسے ہو گیا یار؟ تو وہ پتہ نہیں اب اس کا کیا نہیں ہے۔ یہ سب مفروضے والی باتیں ہیں، حضور نے میرا نہیں خیال اجازت دی ہوگی۔ لیکن عدنان صاحب اگر زبانی کلامی بات ہے نا، لیٹر یہ آ جائے، لیٹر میں یہی لکھا ہو عدنان صاحب، تو پھر تو یہ تو بڑا
الارمنگ کوسچنز ہیں جو کہ صرف اس بندے پہ نہیں اٹھ رہے جو کہ یہ اقدام نہیں، کر جو رہا ہے. انفرادی سچویشنز ہوتی ہیں اس کی ہر معاملے کے تہہ میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، کتنے لیٹر ہیں، کس نے کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کتنے لیٹر ہیں ساکی صاحب ٹوٹل آپ اگر نے تو ایک لکھا ہے بندے اور کو پڑھا جس بھی ہے. طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے پہ اس کو سزا ملی ہے، تو ایک دم سے اس کو اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے یقیناً کچھ ایسی تسلیاں اور ایسی باتیں کی ہیں، اس نے ایسے سائن کروائے ہیں. لادین بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں صرف شادی کے لیے کر بھی لیتی ہیں، جی اپنا بالکل نام اقرار وہ کر بھی لیتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کر بھی سکتا ہے کہ اس نے بیعت کر لی ہو یا اس طرح کی بات کر لی ہو، بعد میں اس نے اپنے نظریات کو ہی رکھے ہوں، لیکن جی صرف ساکی صاحب. اس معاملات پہ کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی باتوں کو اس بات پہ سزا ملی ہے. ٹھیک ہے، تو جس بندے کو اس بات پہ سزا ملی ہے تو فوراً سے اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ میں سزا پتہ کیوں عدنان بھائی ملی تھی چندے والی؟ کیونکہ اس لیٹر میں نا یہ بھی ساتھ ہم نے لکھا ہوا تھا کہ یہ تقریباً 3 مہینے سے نا اکٹھے رہ رہے ہیں، اوہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی چندے کی. اور پھر یہ سزا معاف ہو گئی اور نہیں، پھر چندہ پھر شروع ہو گیا. ایک یہاں پہ میں بات کہنا چاہوں جی گی، جی پھر لبنہ وہ بھائی. یہ انہوں نے جو کہا ہے نا، تو پھر حضور نے اسی بات کے لیے کہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے اس لیے نکاح کی اجازت دی ہوگی. لیکن ایک یہ بات پھر بھی حیرت کی ہے کہ نکاح اگر مسجد میں پڑھا گیا، کورٹ میرج ہو جاتی تو وہ ایک چیز اور تھی، نکاح اگر پھر بھی مسجد میں پڑھا گیا ہے تو یہ تھوڑا شاکنگ ہے ہمارے لیے. میرے لیے وہ جو جی وہ جو تو نکاح سزا ان مسجد کو میں جب پڑھا مل گئی گیا تھی تھا 3 اس مہینے کے سے بعد جو ہے نا وہ لبنہ جی ادھر آپ کو پتہ ہے نا اسٹنڈا سمت کا، میں وہی کورٹ میرج وہ اسی کی بات کر رہی تھی. ہاں پھر ادھر بھی ہوا تھا، بعد میں ادھر بھی ہوا. نہیں، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہی تھا، لیکن یہ بات ہے کہ نکاح مسجد میں پڑھا دیا گیا ہے، احمدیہ مسجد میں، یہ بہت بڑی یہی بات لبنہ ہے. باجی یہی تو یہ بات میں نے ہے آج کہ تک نہیں سنا، یہی تو حیرانی کی بات ہے. یہ میں نے آج تک نہیں سنا. اس لیے کئی مسائل دنیا میں ہوتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، وہ کورٹ میرج ہو جاتی ہے کہ نکاح مسجد میں پڑھایا یعنی یہ بہت مشکل ہے. اہل بیت اگر ساقی بھائی لڑکی کی ہو تو باتوں میں اس کا اس لیے پڑھایا جا اعتبار سکتا. نہیں کیا جا سکتا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یہ جائز نہیں سمجھتے، دوسری طرف یہ اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے ایک خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے. یار وہ کزن ہے، میں اپنے کزن کے ہاں، پیچھے پتہ نہیں کتنی لیکن دفعہ سر پڑے ہوں گے ایک لوگوں بندے کے. کو آپ خود صحیح ایک بات کو آپ نہیں ٹھیک سمجھتے تو آپ اس کے بعد اس کے ساتھ اس جرم میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک جرم کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو کے اس کے تعاون کیسے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں جو نہیں ساقی بھائی نہیں نے اس کام میں کیا ہے، ایک اس طرف میں یہ کہہ جرم رہے ہیں کہ کون میں سا اس کو ہے منع عدنان کرتا بھائی؟ رہتا ہوں کہ اس طرح سے نہ نکاح کرو، دوسری طرف اس کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نے یہ سارے قاتل کھوائے ہیں، تو اس لیے ان کا جو قابل بات ہے ساری وہ ناقابل اعتبار ہے. تو اس پہ تو کسی قسم کی آگے تفصیل بات کرنا تو اب کیا سرائی پہ بات نہیں ان ہوگی. سے آپ ساکی رمضان میں صاحب سے گناہ گار جواب ہونے لے لیں. والی بات ہے کہ نہیں اس طرح ساکی کی. صاحب سے جواب لے لیں اس کا. ساکی صاحب آپ کیوں نہیں غلط کام میں کا کہہ ساتھ رہا دے ہوں رہے اس میں جرم والی کون سی بات ہے کہ نکاح کرنا جو ہے جو یہ وہ جرم ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ خدا کو نہیں مانتی تو آپ کے مطابق آپ نے خود یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ بات وہ غلط کر رہا ہے اور میں اس کو منع کرتا رہتا ہوں کہ یا تو اس کو مسلمان کر یا احمدی کر، پھر جا کے اس سے یہ سارے معاملات کر. دوسری طرف آپ اس کے اس کام میں بھی شریک تھے، آپ جانتے بوجھتے کہ وہ لڑکی دہری ہے تو اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے نکاح کروایا جائے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس میں بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی وہ ناقابل اعتبار ہے. اس کے بارے میں مزید بات کرنا یا اس پہ کسی قسم کے فتاویٰ دینا میرے خیال میں جائز نہیں ہوگا. شاید ہم کسی عدنان بھائی میں آپ کو صرف خفیہ ایک طور پہ چھوٹی سی گناہ میں کسی شریک ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، سارے لیٹر لڑکی اور لڑکا میں سارے لے کے ابھی گاڑی پہ بیٹھ کے آپ کے گھر آ جاتا ہوں، آپ نے پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی طویل کر دینی ہے. نہیں، پھر آپ میں اس کدھر جاؤں؟ گناہ میں تعاون کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو درست نہیں سمجھتے. آپ نے یہ ڈیول پرسنالٹی کیوں اپنائی؟ آپ نے یہ دگلا معیار کیوں رکھا ہوا ہے کہ ایک طرف اس کے ساتھ مکمل آپ تعاون کرتے رہے، دوسری طرف آپ ہمارے سامنے آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تلقین کرتا رہتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح
मुसलमान कारण तू बहुत ही गलत काम कर रहा है और ये जायज़ नहीं है, ठीक है? और नहीं तो उसी आपके को कहने का आपने मतलब क्या है हौसला कि अफजाई मैं करते हुए उसके उससे साथ ताउन किया आपने। नहीं, आपका कहने का मतलब यह है कि मैं उसके साथ जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर दूं, बोलना चालना भी, बैठना उठना भी, सब कुछ नहीं, खत्म कर दूं। आपने निकाह में आप कह रहे हैं कि साथ बैठ के आपने उसका खत लिखा, हाँ जी। ये जानते बूझते कि ये काम ये जायज़ नहीं कर रहा और ये आप मुकम्मल उसका ताउन करते रहे हर तरह वो से, तो मुझे लग रहा है आपको ना तो कि उसी जायज तरह नहीं कर रहा, तो इसलिए तो खलीफा वक्त को हाथ लिख रहे हैं कि अगर इजाजत मिल जाती है तो कर लेते हैं। नहीं इसमें कौन सी गलत बात है? नहीं तो आप एक आप एक आप मैं खुद ये एक बयान मिनट दे जी, रहे हैं कि मेरी आपके मुझे जरा मुताबिक। मौका दें, मुझे मौका दें। देखें, बात ये है मैं अदनान अपना तो साहब, कह रहा हूँ ना कि मैं उसको ठीक अगर कहता अदनान कि ये साहब जरा ठीक गौर नहीं है। करें, मैं अगर अपने किसी दोस्त का, अल्लाह माफ करे ऐसा कभी जिंदगी में ना हो, को मेरा दोस्त जिस तरह आम तौर पर जाता है जी किसी लड़की को मिलने के लिए, मैं अपने दोस्ती में मैं जाकर उसका साथ दे देता हूँ कि यार अच्छा यार चल, मैं तुझे तुझे कोई पकड़ ना ले, मारे ना, तो मैं चल तेरी सपोर्ट में, नाउजुबिल्लाह ऐसा कभी ना हो। अब मैं उसका साथ तो दे आया हूँ, ठीक है ना जी। अब मैं बाद में कह रहा हूँ कि यार ये काम तो तूने गलत किया है। अब मुझसे आप पूछें कि ये काम वो ठीक कर रहा था, मैं कहूँगा ऑब्वियसली गलत काम कर रहा था वो आपके, लेकिन तूने उसका साथ भी दिया। तो बात तो आप सिंपल देखें ना, गौर करें आप बात क्या कर रहे हैं। जब खलीफा साहब को खत लिख रहे थे तब तो वो उसके साथ था, तब तो गलत नहीं था ना, इजाजत मांग रहे थे। जब इजाजत आ गई, वो खलीफा की सुने या साकी की सुने? अब खलीफा तो जो साकी है वो खलीफा साहब की माने या अपने कजन की माने? वो कहता मुझे लगता है कि साकी साहब अपना क्लियर करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो अदनान भाई को शुरू से कह रहा हूँ कि मैं उसको मना करता हूँ कि यार मुझे लगता है तू बहुत गलत कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा ये लग रहा, तो या तो छोड़ दे या फिर उसको इस्लाम में ले आ, अहमदी कर ले। असल सवाल बनता है कि खलीफा साहब ने किस बेस पे इजाजत दी? उनके पास तो साकी नहीं बैठा हुआ सारे था। मफरूज़े हैं ना, आप कोई भी बात यकीनी तौर पे एक शख्स के बयान, सादा बयान में कोई भी बात आप किसी हतमी तौर पे बात नहीं कर सकते, ठीक है? मफरूज़े पे आप इस तरह से उसको सच बना के पेश करेंगे तो ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जब आपके पास मफरूजे को हकीकत बनाने का साकी साहब ये आप पे बहुत बड़ी नहीं जिम्मेदारी आ नहीं गई है। यार मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सीकर भाई, क्या पता उसने तौबा कर ली हो, आपको क्या पता है, आप दिलों के हाल चलो जानते हैं। चलो छोड़ नहीं दें नहीं, इस बात को। शाह जी डी ट्रैक हो सीकर भाई जाएगा, डी इस ट्रैक हो बात को ही जाएगा। छोड़ दें, इस बात को ही छोड़ जी दें। जी ठीक, जी जी करें। अदनान भाई आप ये बताएं कि उन्होंने लड़की को इजाजत क्यों नहीं दी? फिर नहीं दी, वाह लड़की वाह को वाह। इजाजत क्यों नहीं गुड दी? पॉइंट, गुड पॉइंट। ये आवाज़ में जो सही सवाल नहीं समझ रहे क्या? लड़की को इजाजत क्यों नहीं दी? वो उसका अपना सका कजन चाचा का बेटा है उसके, वो गैर अहमदी है, लड़की अहमदी है, लड़की को इजाजत नहीं मिली। नहीं, ये क्या मैंने आपकी पहले ये पर नया मामला आपको लेके हैं बीच में? नहीं, ये दोनों मैं बातें क्लियर मैंने कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। अदनान साहब लेट आए, मैं क्लियर कर देता हूँ। अदनान साहब दो सवाल लेके आए थे कि एक मेरा कजन है जो कि एक दहरिया से शादी कर, यार बाकी जरा म्यूट लगाइएगा। एक मेरा कजन है जो कि दहरिया से शादी करना चाहता है, उसको हजूर से इजाजत मिल गई। एक मेरी कजन है जो कि अपने कजन से शादी करना चाहती है, और वो कजन मुसलमान है ना साकी भाई, लेकिन अहमदी नहीं है, हाँ जी, और उसको इजाजत नहीं मिली। और उसके यार सके चचा का बेटा है। ये चचा का बेटा है। अदनान साहब इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पहले ही इनके स्टेटमेंट पे मुझे उस पर नहीं मैं पूरा भरोसा कर सकता, क्योंकि मेरे मुताबिक तो वो जो पहली बच्ची है वो यकीनन मुसलमान हुई होगी, फिर उसका निकाह हुआ होगा। बाकी ये जो बातें कर रहे हैं, मैं इस पे मुकम्मल जब तक मजीद मेरे पास मालूमात ना हो तो मैं तो कोई राय नहीं दे सकता। लुबना बाजी आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल। लुबना बाजी अगर ये दूसरा सिनेरियो भी सामने रखें कि लड़की को गैर अहमदी से शादी की इजाजत नहीं और लड़के को दहरी से, अगर ये बात ठीक है तो साकी साहब के ऊपर सबूत तो वो भी वो है। इसलिए वो इसलिए कि वो जो गैर अहमदी है उसको मुसलमान नहीं समझते, इसलिए वो इजाजत कभी भी नहीं देंगे और कभी मिली भी नहीं है। अच्छा, वो नहीं समझते गैर अहमदियों को मुसलमान फिर? जी बिल्कुल नहीं। ओके एमजी साहब, सीकर भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, उसामा भाई एक दोबारा होगी आपके साथ जी, बाबर भी आप सीकर करें। भाई आपसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मॉडरेट कर रहे हैं। देखें, जब सारे कह रहे हैं और साकी जो है ना, उसने मैंने भी उससे कहा है हम भी उसको चेक करेंगे, हर बंदा चैलेंज कर रहा है कि चेक करेंगे। आप समझें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। जब आप इतना उसके ऊपर वजन डाल रहे हैं ना, तो फिर बाद में ये तमाशे नहीं होने कि
अच्छा मैं क्या करूं, फिर आपने बताना है कि आप क्या करेंगे। आप बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि जी जी आप जी जी मुझे सबूत दो ही दो, अगला वो कह रहा है मैं घर ले आता हूँ, बंदा भी ले आता हूँ, डॉक्यूमेंट भी ले आता हूँ, फिर ये बात है, फिर आप क्या करेंगे? ये प्लीज जी। मेरी इतनान रिक्वेस्ट है। साहब आप क्या करेंगे अगर ऐसे ही सारा सीन होगा तो? जो जो साकी कह रहा है, जिस पे आपको लगता है ऐसा साकी गलत कह रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, अगर वो ऐसा ही हो तो अदनान साहब आप क्या करेंगे? मुन्नू फैर मारनगे। नहीं देखो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। वो पीछे चले गए। आप सीकर भाई बात समझ रहे हैं? देखें ऐसे 1600 बंदे आ जाएंगे जो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, डी ट्रैक करने के लिए इसके ऊपर तोहमत लगाएंगे, बेईमानी करेंगे, उसको जमात से फारग कर देंगे। सर लेकिन मैं जनाब मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा इतनी बड़ी शुड़ल छोड़ सकता है, मैं मान ही नहीं जी, सकता। अब देखिए अगर एक बंदा मुझे ही कह दे, ये साकी मुझे कह देता है, कहता है बाबर साहब मैं आपको मिला देता हूँ, जिस तरह मैंने इसे कहा कि मैं देखूंगा, मुझे बताओ, मैं वीडियो कॉल करूंगा। इस अगर एक बंदा कहता भाई मुझे दिखाओ, मैं सारा कुछ करूंगा, तो फिर ये इसका भी तो, साकी का भी तो दावा है ना कि वो तू की करेगा। क्या ख्याल है सीकर साहब? बिल्कुल जायज़ बात है कि मतलब वो सेफ प्ले कर रहे हैं। और मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि वो साकी को तो कह रहे हैं कि साकी तू उन्हों दे नाल है काम च साथ क्यों दिता, उस तरफ नहीं आ रहे कि खलीफा साहब ने खत पे अप्रूवल दिया हुआ है। मतलब अजीब मुनाफिक है भाई। ये सुनाइन था क्योंकि अभी हो गई ये बात। अदनान नहीं है तो हम बात करें। तो सीकर साहब मैं आपने बहरहाल पॉइंट नोट किया। मैं बार ताज़ियत करना चाहता हूँ उसामा के साथ कि उसामा बाकी जो भी बात हो रही है तेरा बुरा असर हो गया उस्ताद, तू बस म्यूट ही रख, सीकर साहब इधर बाकी आ गए, गल्लां दी म्यूट गल्लां लगा हुआ है। तू बकरा है भी रगड़ांगे। सीकर जी का म्यूट सॉरी है। सॉरी, मैं जरा एक जी 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 अच्छा क्या मुझे कह रहे लगा हैं? आप चले। आप ये देखें कि जब आपने किसी को इतने सख्त अंदाज से आड़े हाथों लेना है ना, और वो कह रहा है मैं जी आपसे मिलाने को तैयार हूँ, रिस्क देखें, जी अपनी प्राइवेसी एक्सपोज करना सारा कुछ, फिर आप बिला वजह के नहीं कर सकते, फिर अगले बंदे का भी आप पे दावा। ये प्लीज आप ये ज़हन में रखिएगा। जज़ाक। यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बाबर भाई और सीकर भाई, आप दोनों से मेरा वादा रहा कि जी हमने आना है अगस्त में ना इंशाल्लाह यूके, ठीक है। और हम सब ने आना है, आपको जरूर मिलवाऊंगा उस जोड़े से। ओए 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 ओए, हाँ तो सर हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके भाईजान पॉइंट हम पे फूल खड़े लेके होंगे, खड़े होंगे उस जोड़े पैरा के लिए। देंगे। नहीं उसके बाद भी हम पैरा देंगे, हम तस्दीक करेंगे, हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे, बिल्कुल। फिर या तो कोई बंदा ये बात करे तो फिर आप उसके घर जाएं, लेकिन ये नहीं कि आप कोई बंदा कहे खत सुन के देख के घर बुला के, सीगर भाई फिर इंज तरी ना कि हर बंदे ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ कहे नहीं यार मैं तो बिजी हाँ, मेरे कमर 'ਚ दर्द है। चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो लुबना बाजी को एक सवाल पूछ लेना। जी लुबना जी बाजी, पूछो पूछो, मैंने 2 मिनट दियो बाबर साहब, तुसी जरा करो मॉडरेट, तुसी पूछो साकी भाई। वो लुबना आपस में बाजी, बात कर रहे हैं और कोई ना आपने बोले बहुत जी। देखी होंगी ऐसी शादियां जी जो हमारे अहमदी लड़कियां गैर अहमदी लड़कियों के साथ शादियां बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। तो लड़कियों को क्यों नहीं होती हैं? इसलिए लड़कियों को नहीं होती कि जो अहमदी हजरात हैं, जो मरबियान हैं, जो हजूर की तरफ से जो मैसेज है वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, और हर हमारी बच्ची को किसी मुसलमान लड़के से इसलिए इजाज़त नहीं शादी करने की कि वो उनको मुसलमान नहीं समझते, और वो ये समझते हैं कि अगर जो लड़का अहले बैत से लड़की से शादी करता है वो हमारे घर में आ जाती है, हमारे रवैये, हमारे लोगों की वजह से जो आगे वाली नस्ल है वो यकीनन हमारे ही साथ होगी, जबकि लड़की की नस्ल जो है वो अगले घर में चले जाएगी और वो उनके मुताबिक ही होगी। तो फिर एक सेकंड साकी भाई, एक सेकंड बाजी, नस्ल तो खातून से तो नहीं चलती, वो तो लड़के से चलती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है और कि उनके यानी जिस भी फैमिली की वो बच्ची होगी वो तो चाहेंगे ना कि हमारे ही फैमिली वालों में से हो। नहीं वो आपकी जिसको बात ठीक है माहौल और उसके हिसाब से, लेकिन अगर असूल इस्लाम या उस तरह देखा जाए तो अहमदी है। लड़की जब आ रही है तो वो मुसलमान कैसे कंसिडर हो रही है जब लड़का मुसलमान कंसिडर नहीं हो रहा? ये तो तजाद नहीं हाँ है, ये तो ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये अब एक लड़की है और एक लड़का है, मैं इसको सादा कर देता हूँ, लोगों उधर को समझ।
ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ने जितनियां भी अहमदियां के बारे में नीचे भाइयों कमेंट्स देखा करें, देखें हम हर वक्त कमेंट्स नहीं देखते मॉडरेटर्स। आप किसी ने किया, मैं मॉडरेटर यार इसको ब्लॉक कर दें सीधा। बहनें जो है ना, चाहे गैर कौन है? जमात की कौन हैं, वो हमारी बहनें हैं, उनके बारे में फजूल बात। अच्छा बाजी वो देखें ये कौन है यार? कतई भाई ना नजर करो इसके भाई, कि मुसलमान नहीं गाली देते। नीचे शाह साहब देखें एक सेकंड में, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। जी जब अहमदी लड़का शादी कर रहा है तो वो जो जिस लड़की से शादी कर रहा है वो भी गैर जमात, और जी जो लड़की है वो लड़के से शादी कर रहा है वो भी गैर जमात। अगर लड़का जिससे शादी कर रहा है उससे निकाह हो सकता है, उस वक्त ये इस्लाम वाला चक्कर नहीं है, तो लड़की की दफा क्यों नहीं है? लड़की की दफा भी तो गैर जमात, फिर मुसलमान ही हुआ ना। भाई इनका मौकफ यही है कि लड़का जब लड़की को लेके अपनी फैमिली में आता है, वो अपनी फैमिली के साथ, वो ये है, तो लड़की को वो ये समझते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, वो उसको नहीं इजाज़त देते। जैसे ये है कि मैं कई जानती हूँ, कोई हमारी जो अहमदी बच्चियाँ हैं उन्होंने गैर अहमदी लड़कों से शादी की ख्वाहिश की, लिखा, ये वो, उनको किसी को इजाज़त नहीं मिली। हत्ता कि जो वालदैन होते हैं, अगर वो वालदैन उस बच्ची के साथ शामिल हों, या मसलन ये है कि वो निकाह में शामिल हों, तो इसका इखराज हो जाता है। इसका तो मैं गवाह हूँ, आप सच कह रही हैं। और मैंने एक शादी बाकायदा देखी थी जो वालदैन हैं उनको 2003 या लिखना 4 पड़ता में। है, सुन ले उनकी लुबना जी की जी सुन जी ले। सॉरी। जो वालदैन हैं उनको लिखना पड़ता है लेटर कि हमारी बच्ची, उसकी उम्र इतनी हो गई है, यानी अगर वो 18 साल से ऊपर हो गई है तो वो कानून के मुताबिक उनको कुछ नहीं कह सकते, तो वो उनको लिखना पड़ता है हमारी बच्ची ये ऐसा चाह रही है, हम इस चीज़ में शामिल नहीं हैं, तो तब उनको कुछ नहीं कहा जाता। वो फिर लड़की जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेती है, यानी जमात में निकाह नहीं होता। तो इसलिए ये साकी भाई की ये बात से थोड़ा सा मुझे शौक हुआ, तो मैंने ये पूछा। तो वो माँ बाप बाद में उससे राब्ता रख सकते हैं। हाँ जी, मैंने तो देखा है माएँ रखती हैं, बाप थोड़ा सा नहीं रखते, शुरू में, लास्ट में हो जाते हैं, लेकिन माएँ तो रखती हैं बिल्कुल भी। और ये बात समाजी तौर पे या जमात की वजह से? जमात की वजह से। चले फिर यही पॉइंट था। सीकर भाई आपने सुन लिया। जी हमें तो पता था वो। खैर असल में पता है क्या होता क्या है, देखें हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि हमने ये कह के या कुछ खिलाफ होना है। हमारे पास भी लोग जब ये बात लाते हैं ना, तो अब बाबर भाई आप जानते हैं, मैंने शायद आपसे बहुत से केसेस ऐसे शेयर किए हैं जो इस टाइम भी इन प्रोसेस है, और लेकिन हमें यहाँ पे आके झूठा कर दिया जाता है। हमें आके बता कि जैसे हम मुखालफ हैं, 130 साल से मुखालफ नहीं। देखें ये बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप कहते हैं आप मुसलमान समझते हैं, तो फिर ऐसे क्यों? यही सवाल मेरा टिकटॉक पे पहला, मुझे लगता है वो अहमदी ही लोग थे, तो मैंने खुद किया था कि जब हम कहते हैं कि हम बाकियों को मुसलमान कहते हैं, तो हाँ फिर जी, तो ये मैंने क्यों? उनको यही कहा था कि हम अभी जो अहमदी बच्ची है उसकी मुसलमान से शादी क्यों नहीं कर सकते। और ये एक तरफ अहमदी लड़की की मुसलमान से शादी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ लड़के की धैर्य से भी इजाजत दे दी। ये हाँ, मेरे ख्याल में झूठ है भाई, मफरूज़े के ऊपर ना ऐसे बात करें, आपके धैर्य से इजाज़त दे दी है, ये अच्छा, बात आप एक बिल्कुल मिनट, नाकाबिले कबूल है। और ये अपनी आप बताएं, ज़ाती जो अगर ये सच हुआ, अगर ये सच हुआ तो आप क्या करेंगे? ये सब झूठ है। वो एक तरफ से कह रहे हैं कि मस्जिद में पूरी सेरेमनी हुई, उनके वली भी वहाँ पहुंचे हुए थे। आवाज डबल हो रही है, मुझे लीजिए करवा। ये तो दूसरी तरफ वो कह रहे हो ना तो उसको इस्लाम से कोई गरज थी, ना ही उसे कोई दीन से ताल्लुक था, ना खुदा को मानती थी। दूसरी तरफ सारी अदनान साहब, इस पे बिल्कुल मैं आता हूँ, इस पे बिल्कुल मैं आता बंदे ने हूँ। उनको यकीन दिलाया है जमात को कि ये बंदी जो है ये अहमदी हो जाएगी या हो गई होगी, तो फिर जाके इन्होंने आगे इसको तस्वीर मिली होगी। ये आपको कैसे पता है? आपने खत पढ़े हुए थे? एक मिनट सीकर भाई, एक मिनट। जी तो सिस्टम तो पता है ना, क्योंकि अदनान भाई देखो, अदनान वो भी भाई एक साल का मिनट टाइम लिया जाता है। एक तरफ से इस बंदे को सजा मिल गई कि वो नाजायज ताल्लुकात में वो है। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੜਕਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ?
ਕਿ ਝੂਠ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਹਿਰੀ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। आप हाँ, जनाब उत्थे करके बैठ बात के कर रहे हैं अदनान भाई, आप जनाब करके बात करें साकी साहब ਉੱਥੇ से, ਬਹਿ हमारे ਕੇ ਉਹਨੇ मोहतरम ਕਿਹਾ दोस्त हैं ਲੜਕੀ वो। ਨੇ ਕਿ मैं नहीं ये तू मानती। तरा वाली गुफ्तगू ना करें यहाँ पे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਰਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, और नहीं मैंने कोई मसला नहीं, अदनान भाई मेरे भाई ने, कोई मसला नहीं, वो भाई ने नहीं मेरे। वो आपको भाई कह रहे हैं, आप तू इस तरह से बात कर रहे हैं, वो नहीं शायद है उस बात के, जवाब दें बात का, गुस्सा ना करें। जी हम जी अदनान भाई आप और जाइए। नहीं कोई मसला नहीं, वो काजमी भाई जान, वो भाई ने मेरे, बड़े भाई ने या छोटे भाई ने, भाई ने मेरे। एक मिनट यार चले। मेरा ख्याल है ये रिसेंटली ये बात हुई है, तो आजकल के नौजवान जो लड़का लड़की हैं वो नहीं परवाह करते इतने रिलीजन का, और उसमें जो है ना वो फिर जब मोहब्बत हो जाए फिर ये ऊपर की बात है। और मुझे लगता है कि जो इजाजत दी भी गई, उन्होंने बकायदा ये बता रहे हैं कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो जो मुझे लगता है कि वो इस बुनियाद पे ही उनको इजाजत दी गई थी। मैं बाजी माजरत, मैं जरा अपने भाई के साथ इख्तलाफ कर लूं। डंडा पीर भाई, जवान लड़के लड़कियों को तो फिक्र नहीं होती, लेकिन अगर आपके अमल की वजह से आपके पेरेंट्स प्रेशर में हो, सोशल बायकॉट में हो, या वो अपना वो सोशल सर्कल उनका कट हो जाए, तो फिर क्या आपको फिक्र नहीं होगी? आप इतने के लापरवाह आदमी हैं। नहीं बाबर भाई, आप समझ लीजिए नज़ाकत को। मेरे सवाल का भी नज़ाकत ही जवाब है। दें कि अगर आप के वालिदैन को आपके किसी अमल की वजह से, यानी यहाँ पे कोई तस्वीर उठा के मोहल्ले में भेज दे कि डंडा पीर ये कर, और आपके वालिदैन को 2 बंदों से भी ताने सुनने पड़ जाएं, या 2 दोस्त उनके नाराज हो जाएं, तो आपके ऊपर क्या इमोशनल प्रेशर होगा? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कभी मोहब्बत की है किसी से? यार मैंने पीर साहब हमने तो नहीं की, आप तो बस आपको नहीं पता इस चीज के बारे में। तो सर मैं जब प्यार हो जाता है फिर ये दीवारें नहीं काउंट होती कि ये मजहब की और माँ बाप की। ओदी मोहब्बतें शुरू हो गई है, ओदी मोहब्बतें शुरू हो गई ये किधर शाहरुख खान ले आए जी? हाँ जी, जी और लुबना तेरे बाजी, सर टॉपिक पे वापस आए, आपने आशिक छेड़ दिया। लुबना बाजी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि वालिदैन पे प्रेशर होता है इमोशनल और सोशल? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता। वो बच्चे जो है, बच्चे तो इस चीज को वाकई नहीं समझते, लेकिन वालिदैन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। अब लुबना बाजी मुझे ये बताएं, या साकी साहब भी जवाब देना चाहें तो, कि ये प्रेशर इस्लाम की वजह से होता है या निज़ाम जमात की वजह से होता है? जो मैंने देखा है, मुझे तो लगता है जमात की तरफ से ही होता है, उनकी वजह से ही होता है, इस्लाम की वजह से नहीं होता। तो फिर लड़के की दफा क्यों नहीं होता, जो लड़का बाहर से लेकर आ जाता है? एक ऐसा केस मैंने भी देखा है, ये लंदन में, जिसने ऐसा ही मामला बिल्कुल किया, बाद में जनाब चंदा भी, यार तुमने असल चीज अलाउ कर दी। अब वो माशाल्लाह जमात का बड़ा दम भरने वाला बंदा है, लेकिन फिर लड़के की दफा क्यों नहीं ये प्रेशर होता? लड़की की दफा आपको बताया ना कि वो ये समझते हैं कि हमारी मुसलमान जो लड़की है वो किसी गैर मुस्लिम के साथ ब्याही जाए, और ये वो उनके लिए गवारा नहीं होता। वो इसको ये समझते हैं कि इस्लाम फौरन यहाँ से किसी मुसलमान किसी गैर वो मुस्लिम साकी के साथ। भाई की डिग गए हो, म्यूट लाओ तो साकी फिर हेड कुछ को हो रहा देख है। गए ने। लुबना बाजी आपकी आवाज कट गई थी, अब प्लीज दोबारा दोहरा दें। मैंने कहा कि वो ये समझते हैं ना कि हमारी मुसलमान बच्ची की शादी किसी गैर मुस्लिम से हो जाए, वो इस चीज को गवारा नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि इस्लाम में लड़की की शादी किसी गैर मुस्लिम से नहीं हो सकती। का मतलब है लुबना बाजी, आज फिर ये क्लियर हो जाए ना कि अहमदीज गैर अहमदियों को मुसलमान नहीं समझते। जी बिल्कुल। और जो हमारा किबला रुख नमाज पढ़े, जो जबिया खाए, जो किबला रुख, जो कलमा पढ़ता हो, वो फिर मतलब हदीस की जो कहते हैं मुसलमान की तारीफ किया है, ये फिर
डॉक्टर भाजी सारा ही ढोंग है टिकटॉक पे जो हमें सुनाया जाता है पूरा दिन के, यार आप हमें ये कहते हो तो फला कहते हो। मैं भी यही समझती थी, जो मैंने देखा है, जो मैंने ये समझा है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जमात की तरफ से कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है। अल्लाह अकबर। मैं तो यार बड़ा अजना अजीब सा, मैं चाहता हूँ इस पे एक कमेंट जो है ना, शाह जी 1 मिनट अगर आपकी फिर भाई इजाज़त एक है। सेकंड, मैं लुबना बाजी से एक सवाल शाह जी, पूछना चाहता हूँ जो कि अच्छा ये मेरे कर दिमाग में काफ़ी देर से है। और सवाल ये है कि मुझे सिस्टर ये बताइएगा कि लेट से आपकी बेटी है, वो गैर अहमदी में शादी करना चाहती है, क्या आप उस शादी में शिरकत कर सकती हैं, या आपके हस्बैंड कर सकते हैं शिरकत उसमें? माजरत के साथ मैं सवाल इस तरह से पूछ रहा हूँ, लेकिन जी, बिल्कुल पर्सपेक्टिव देना है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइएगा देखिए, ज़रा। जब से मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा माशरे में या इस्लाम में क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नहीं है। मैंने अपनी बेटियों को और अपने बेटे को भी इजाज़त दी है कि आपने अगर अपना साथी खुद देखना है, खुद करना है, तो आप सिर्फ ये बात है कि मुझसे राब्ते में रहना, मुझे बताना, मैं आपकी हर खुशी में शामिल हूँ। और अगर आज मेरा बेटा किसी यानी अहमदी से नहीं, किसी दूसरे से भी शादी कर ले, तो मैं हर सूरत अपने बच्चों के साथ मैं शामिल होंगी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं होंगे। नहीं, लेकिन ये और सवाल और एक बाजी एक सेकंड भाई, मैंने सवाल है, मुझे फॉलो थ्रू करना है, अच्छा मुझे फॉलो अप करना है सवाल में। नहीं सिस्टर, जो मैं चाह रहा हूँ, क्या मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा ये, मतलब कि आपने और लोगों की शादियाँ होती देखी, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि गैर अहमदियों में शादियाँ होती आपने देखी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या माँ बाप को ये इजाज़त होती है कि अगर वो मतलब उन्होंने इस बात पे इजाज़त ली है कि अभी वो लड़का बस वो मोहब्बत करता है, वो करेगा ही करेगा, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या जमात माँ बाप को ये इजाज़त देती है कि कम से कम उस निकाह के फंक्शन में या किसी फंक्शन में वो शामिल ही हो सके, या नहीं? इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, जैसे ये मेरी एक दोस्त है, उनके बेटे ने सुन्नी लड़की से शादी की, तो उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन वो माँ, उसका बेटा डॉक्टर है, और वो माँ बड़ी यानी एक बेवा हालत में उन्होंने उस बच्चे को पाला पढ़ाया, लेकिन उनके लिए बहुत तकलीफ समा था। और मेरे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप स्टैंडर्ड सब में ज़रूर जाएं। वो गई, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं है। ये स्टैंडर्ड शाह मुझे ये कोर्ट को कहते हैं ना, ये मेरे ख्याल में। कोर्ट मैरिज जी 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 जी। लेकिन देखिए, पॉइंट नोटेड ये है कि वो भी छुप के वो गई हैं, ठीक है, और जमात ने मना किया है कि उनकी अपने बच्चे की शादी में वो शिरकत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो देखे लेटर जो है वो ऐसा ही है। गलत तो नहीं कर रहा, कोई अपनी तरफ से तो नहीं लगा रहा कोई बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल। ये बात मैंने सही कही? अगर वो देखे, वो सुन्नी लड़की थी, अगर वो क्रिश्चियन लड़की होती तो तब मेरे ख्याल में वो उसको इजाजत दे देते। और ऐसे ही है, क्रिश्चियन लड़कियों की इजाजत मिल गई है। वो लड़कों ने जो की, वो कोर्ट मैरिज में वो गए, लेकिन उन्होंने निकाह नहीं किया बाद में ना। तो मुझे एक चीज की और मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे कोई भी एक मुसलमान बच्ची को जैसे इजाजत तो नहीं किसी गैर मुस्लिम से निकाह करने की, तो क्या जो वो कोर्ट मैरिज करती है, तो क्या उसको निकाह ही तस्लीम किया जाता है? ये हमसे सवाल किए इन्होंने। मैं आपको ये तो बाजी देखें है, और ये इसके लिए कोई प्रॉपर नहीं, यहाँ का एक मुफ्तियान सेकंड शाह साहब, फतवा दे ये सकते हैं। दूसरी मैं जी बता जी। देता हूँ। यहाँ पे है इस्लामी ना वो जो फतावा देते हैं और सारा कुछ। बाजी निकाह पहले, निकाह के बगैर कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। जो लोग यहाँ पे कोर्ट में जाकर रजिस्टर करवाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, एज अ लोकल जो बॉडी होती है ना, उसकी पेपर वर्क पूरा करने के लिए, वरना निकाह ही सारा कुछ है। यानी मेरा तो नहीं कोई कोर्ट में हुआ हुआ। नहीं, तो ये जो अहले किताब के साथ होती है ना शादी, अहले जी जी किताब जायज़ भी सिर्फ अहले किताब के साथ ही है, मुशरिक औरतों से नहीं जायज़ है।
उनमें ये होता है कि मुसलमान लड़का जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक, दीन के मुताबिक निकाह करता है, और क्रिश्चियन लड़की जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात अदा करती है। नहीं, वो इसलिए रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो ना ज़िया भाई होता ये है कि जो लोग रजिस्टर करवाते हैं ना, कहीं तो आपने जी जी रजिस्टर करवाना, वो लोकल जो भी गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से, मतलब जिस तरह यूके की बात है तो वो आपको इसलिए रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आप कैसे बताएंगे कि हमारी शादी हुई है, जी जी समझ रहे हैं आप? कि जिसने अब हम्म। बताना कि जी मेरी शादी हुई है, डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर अप्लाई करने हैं हाँ या बिल्कुल, एक्सटेंड वो करना, ज़ाहिर है, वो तो हाँ वो ऐसे ही उसके होता है। लिए, वरना शरई तौर पे निकाह ही है, निकाह ही है। हाँ शरई तौर पे यही है, बाकी तो वो तो फिर जो जिस मुल्क का जैसा कानून हो उसको फॉलो करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, वो ठीक है। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਸਹੀ, ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਫਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਚੱਲਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਝ ਚਲੋ ਬਈ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਤੇ ਉਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪ ਲੋੜ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਕੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਏ ਸਾਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਐਨੀਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੌ ਤੋਂ नहीं यार, ਪਹਿਲਾਂ वैसे शेयर आप कर दी मेरा वीर। आप लोगों ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया, मोहब्बतें पे साकी निकाल मैंने दिया आपको आपने। मैसेज किया, प्लीज देख लेना। ਜੀ ਜੀ नंबर ਬਹੁਤ भेज दें, ਸ਼ੁਕਰੀਆ मेरा नंबर भेज दें। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। बाकी जो चीज़ अभी इन्होंने हमें लुबना सिस्टर ने जो बताई है ना, वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि अपने सके बेटे की शादी के अंदर माँ बाप को इजाज़त नहीं मिली जमात की तरफ से शामिल होने की। यार एक इंसान अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे और अल्टीमेटली यार जमात कैसे किसी के साथ कता ताल्लुकी करवा सकती है रहमी रिश्ते के साथ अपनी औलाद के साथ। अब ये तो चलो शादी की बात है ना, फिर भी चलें इसमें है कि गुजारा हो सकता है, बंदा पेरेंट्स जो हैं इसी बात में खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चों की शादी हो गई है, ना भी जाएं, एक खुशी की बात है ना, वो कहते हैं खुशी से बंदा रह भी जाए तो गुजारा हो जाता है। लेकिन इतना जुल्म है इसमें कि अगर पेरेंट्स फौत हो जाएं तो बच्चों को चेहरा नहीं देखने दिया जाता, और अगर बच्चे फौत हो जाएं तो पेरेंट्स को नहीं देखने दिया जाता, अगर उन्होंने अपना जो है वो जमात को छोड़ दिया हुआ है तो। ये नहीं अंदाज़ा ज़िया करें। भाई ऐसा नहीं हो सकता।